Hello all, welcome again. So here in this session we are going to discuss about the three important term related to the feature selection. So these are the term which are using for selection of the feature. So basically the greedy forward and backward selection and exhaustive feature selection. These are the three important term which are related to the feature selection. So by using this technique, we can also select the feature for building a logical model. So here, let's start the today's session, which is on greedy forward, greedy backward, and exhaustive feature selection. So we'll discuss one by one. So let's move towards the main point. So here first we'll discuss about the greedy forward selection, right? So here the forward selection is an iterative process which begins with an empty set of features. So this greedy forward selection process is start with the empty set of features. So ये हम बाद में डिस्कस करेंगे या विद द एग्जांपल में आपको ये समझाऊंगा, ठीक है. So इधर after each iteration it keeps adding on a feature and evaluate the performance to check whether it is improving the performance or not, right? So first you have to understand these 3 points related to the greedy forward selection. So first we'll discuss about this point, then we'll move towards the example. और example समझ के आपको 100% ये जो टॉपिक है फॉरवर्ड सिलेक्शन का ये आपका क्लियर हो जाएगा. So here this is the second point. So third point is the process continues until the addition of a new variable or feature does not improve the performance of a model. So ये तीनों पॉइंट से हमें ये समझना होगा कि जो फॉरवर्ड सिलेक्शन प्रोसेस है वो तो एक इटरेटिव प्रोसेस है, मतलब वो कंटिन्यूसली नंबर ऑफ इटरेशंस आपको करना होगा, उस तरीके से वो प्रोसेस फॉलो होता होगा उस वहाँ पे, विच इज बिगिन विद द एम्प्टी सेट ऑफ फीचर्स, राइट. तो जब भी आप स्टार्ट करोगे एट द स्टार्टिंग में वो जो उसमें कोई भी फीचर ऐड नहीं होगा, सो एम्प्टी सेट ऑफ फीचर वहाँ पे होगा, ठीक है. उसके बाद आफ्टर ईच इटरेशन इट कीप्स एडिंग ऑन अ फीचर एंड इवेल्युएट द परफॉर्मेंस, राइट. सो जब जब आप इटरेशन करोगे, जब जब एक एक इटरेशन कंप्लीट होगा, तब हर एक इटरेशन के टाइम एक एक फीचर उसके अंदर ऐड होता रहेगा, और बाय एडिंग दिस फीचर वी हैव टू check or we have to evaluate the performance of this model, right. So here you can see performance to check whether it is improving the performance or not. मतलब हम ये चेक करेंगे by addition of features, by addition of one and one features we have to check here the whether the performance is increasing or we can say the performance improving or not, right. सो ये जो प्रोसेस है, ये जो इटरेशंस है, ये हमें कब तक कंप्लीट करना है, कब तक शुरू रखना है. द प्रोसेस कंटिन्यूस अंटिल द एडिशन ऑफ अ न्यू वेरिएबल और फीचर डज नॉट इम्प्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ द मॉडल. मतलब तब तक हमें ये इटरेशन शुरू रखना या ये तब तक प्रोसेस कंटिन्यूस चलता रहेगा जब तक कोई फीचर ऐड होने के बाद परफॉर्मेंस के ऊपर उसका कोई भी असर नहीं होगा, या हम ये ऑब्जर्व करेंगे कि अभी परफॉर्मेंस इम्प्रूव भी नहीं हो रहा है और जैसे उसमें कुछ कमियां भी नहीं मिल रही है हमें, ठीक है. तो या फिर हम उसे डायरेक्टली कह सकते हैं परफॉर्मेंस इंक्रीज भी नहीं हो रहा है और डिक्रीज भी नहीं हो रहा है, ठीक है. तो तब तक ये हम प्रोसेस कंटिन्यूस करेंगे. सो हियर वी हैव अ एग्जांपल फॉर दिस greedy forward selection process. So here consider we have a set of features, right. These are the feature. ये हमारे पास कुछ फीचर्स है जिसके नाम है x1 x2 x3 x4. these are the features. और ये जो शुरू में जो होगा, this model having a no variable, you can see here the start with the model with no variable. So this model is known as a null model, right. The model which having a no variable in it, so such a model is known as a null model, right. So here, so first iteration में क्या होगा, जैसे यहाँ पे हमने देखा कि ये एक इटरेटिव प्रोसेस है, तो जब फर्स्ट इटरेशन होगा तो ये जो सेट ऑफ फीचर्स हमारे पास अवेलेबल है, यहाँ से कोई एक फीचर उठा के एक फीचर हम ये मॉडल के अंदर, मतलब ये मॉडल को प्रोवाइड करेंगे, ठीक है. जैसे
एड अ मोस्ट सिग्निफिकेंट फीचर। तो सिग्निफिकेंट फीचर का मतलब क्या हुआ कि ऐसा फीचर हम मॉडल को प्रोवाइड करेंगे कि जो आउटपुट से रिलेटेड हमें कुछ मतलब उस कुछ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता होगा, जिसके जो फीचर ऐसा होगा कि जो फीचर हम प्रोवाइड करेंगे उससे डायरेक्टली रिलेटेड होगा आउटपुट से। ठीक है। सो हियर if you add this x1 variable into this model, so this model we can consider as a model with a single variable or one variable। ठीक है। तो इस तरीके से ये नंबर ऑफ जो इटरेशंस है वो कंटिन्यूस शुरू रहेंगे जब तक आप ये नंबर ऑफ फीचर्स ट्राई नहीं कर लेते। जैसे मान लो जैसे नेक्स्ट यहाँ पे अगर आप देखोगे तो सेकंड इटरेशन में इसे अगर कंसिडर करता हूँ तो सेकंड इटरेशन में क्या होगा, सबसे पहले आपने x1 फीचर दिया था, उसके बाद जो x2 होगा वो फीचर हम मॉडल को प्रोवाइड करेंगे। सो दिस मॉडल इज हैविंग अ टू वेरिएबल, सो कीप एडिंग अ मोस्ट सिग्निफिकेंट वेरिएबल। तो इस तरीके से जो भी जितना भी सारा डेटा सेट में फीचर्स हमारे पास अवेलेबल है वो सारे फीचर्स हम एक एक करके मॉडल को प्रोवाइड करेंगे, और जैसे ही हम ये मॉडल को प्रोवाइड करते जाएंगे उसी टाइम हम उसका परफॉर्मेंस जो भी है वो इवेल्युएट करते जाएंगे। तो इस तरीके से मान लो आपने x1 इसे दे दिया तो आप परफॉर्मेंस इवेल्युएट करोगे, चेक करोगे आपका परफॉर्मेंस इंप्रूव हो रहा है या नहीं। जैसे मान लो आपने नेक्स्ट स्टेप में नेक्स्ट इटरेशन में सेकंड फीचर दे दिया, फिर से आप इसे इवेल्युएट करोगे, फिर से चेक करोगे वेदर द परफॉर्मेंस इंप्रूविंग और नॉट। तो उसी तरीके से हम ये जो फीचर्स हमारे पास अवेलेबल है डेटा सेट में, इसमें से जो मोस्ट सिग्निफिकेंट फीचर्स है वो हम सिलेक्ट कर सकते हैं। सो दैट्स वाई this is the we can say this is the process for we can use for the feature selection, right? So this is about the greedy forward selection। आप एक एक फीचर उठा के आप मॉडल को प्रोवाइड करते जाओगे, उसके ऊपर इवेल्युएट करते जाओगे और आप चेक करोगे वेदर दिस मॉडल इज परफॉर्मिंग गुड और नॉट रिलेटेड टू द आउटपुट। और अगर आप परफॉर्मेंस कंटिन्यूसली इम्प्रूव हो रहा है तो आप उसी तरीके से वो जो मोस्ट सिग्निफिकेंट फीचर्स है वो एक एक करके प्रोवाइड करते जाओगे। ठीक है। तो इस तरीके से ये जो फॉरवर्ड सिलेक्शन प्रोसेस है या फिर टेक्निक है ये वर्क करता है, राइट? सो दिस इज अबाउट द ग्रेडी फॉरवर्ड सिलेक्शन। नाउ मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट, दैट इज ग्रेडी बैकवर्ड सिलेक्शन, राइट? और वी कैन से in other word we can say the backward elimination technique, right? So here the backward elimination is also an iterative approach. Again this is the iterative process, but it is the opposite of the forward selection। so जो लास्ट में हमने जो फॉरवर्ड सिलेक्शन के बारे में डिस्कस किया ये एग्जैक्टली उससे अपोजिट होगा। ठीक है। ये भी एक इटरेटिव मेथड ही होगा, इटरेटिव टेक्निक ही है, इसमें भी आपको नंबर ऑफ इटरेशन ही करने हैं, बट इसमें ये एग्जैक्टली फॉरवर्ड सिलेक्शन से अपोजिट होगा। ठीक है। सो द नेक्स्ट पॉइंट इज these technique begins the process by considering all the features and remove the least significant features। So if you compare this technique with the forward selection technique, तो forward selection में क्या था कि आपने जो शुरुआत की थी वो नल मॉडल से शुरुआत की थी, उसमें कोई भी फीचर्स आपने प्रोवाइड नहीं किया था, आप एक एक करके उसको फीचर्स प्रोवाइड करते जा रहे थे और आप इवेल्युएट करते जा रहे थे परफॉर्मेंस को। बट इसमें क्या होगा, बैकवर्ड सिलेक्शन में, बैकवर्ड एलिमिनेशन में आप शुरू में ही सारे फीचर्स मॉडल को प्रोवाइड कर दोगे। सो दिस मॉडल इज नोन एज अ full model, right? Start with the model that contain variables, right? So जितने भी सारे फीचर्स हमारे पास अवेलेबल है, मान लो 5 फीचर्स अवेलेबल थे तो 5 फीचर्स हमने मॉडल को प्रोवाइड कर दिए। बट अभी नेक्स्ट इटरेशन में कैसे करना होगा, इसमें से जो लीस्ट सिग्निफिकेंट फीचर्स होंगे वो हमें एक एक करके निकालना होगा, एक एक करके इलिमिनेट करना होगा। सो दैट्स व्हाई दिस प्रोसेस इज नोन एज अ बैकवर्ड इलिमिनेशन, राइट? So this technique begins the process considering all the features and remove the least significant features। मान लो ये आप यहाँ पे फर्स्ट इटरेशन पे पहुँच गए, यहाँ पे remove the least significant features after evaluating the performance of model। आपने मान लो ये x4 जो फीचर्स है वो यहाँ से एलिमिनेट कर दिया, निकाल दिया। फिर x4 को एलिमिनेट करने के बाद, इसको रिमूव करने के बाद आप ये जो जितने बचे हुए फीचर्स है इसके साथ उसका जो मॉडल का परफॉर्मेंस है वो फिर से आप मेजर करोगे, इवेल्युएट करोगे।
फिर से आप चेक करोगे, उसी तरीके से ये कंटिन्यूसली आपका चलता रहेगा। कब तक? दिस एलिमिनेशन प्रोसेस कंटिन्यूस अंटिल रिमूविंग द फीचर्स डज नॉट इम्प्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ द मॉडल। तो ये तब तक चलता रहेगा जब तक ऐसे फीचर्स आप नहीं निकाल दे जिसका कोई मॉडल के परफॉर्मेंस के ऊपर फर्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है, डज नॉट इम्प्रूविंग द मॉडल, राइट। सो इस तरीके से आप जो लीस्ट सिग्निफिकेंट फीचर्स है, अभी लीस्ट सिग्निफिकेंट मतलब क्या, जो रिक्वायर्ड आउटपुट जो है वो आउटपुट के लिए जो रिक्वायर्ड फीचर्स नहीं है, मतलब जिनके ऊपर हमारा आउटपुट डिपेंड नहीं करता है, ठीक है, तो ऐसे फीचर्स आप एक एक करके आप निकालते जाओगे, ठीक है। तो बाकी जो जितने सारे बचे हुए फीचर्स होंगे वो सिग्निफिकेंट फीचर्स होंगे रिलेटेड टू योर रिक्वायर्ड आउटपुट, राइट। सो इफ यू आर यूजिंग ऑल द सिग्निफिकेंट फीचर्स, सो ऑटोमेटिकली जो आपका मॉडल का परफॉर्मेंस होगा वो आपका इंक्रीज होगा, आपको 100% नियर अबाउट 100% वो परफॉर्मेंस आपका मिल सकता है जब आप एक्यूरेसी चेक करोगे तब, ठीक है। सो here this is the backward selection technique. So backward elimination, we can also call it as a backward elimination technique. So इसी तरीके से आप ये दोनों जो प्रोसेस है उसको समझ सकते हो। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर आपको मे बी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, राइट। सो द नेक्स्ट एंड द लास्ट important process in case of feature selection is a exhaustive selection, right? So here exhaustive selection or we can say the exhaustive feature selection process, अभी ये किस तरह से वर्क करता है, तो इसको आपको फिर से ये जो दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो मैं आपको बताता हूँ, फिर से एक एग्जांपल देके आपको समझाऊंगा। सो हियर exhaustive feature selection is one of the best feature selection method which evaluate each feature set as a brute force. So here new term is there, that is brute force. So you have to first understand what is the meaning of this brute force, right? So basically the brute force is nothing but a brute force approach we can say, or brute force algorithm we can use for this particular exhaustive feature selection process. So basically ये होता क्या है ना कि इसमें जो टेक्निक है वो तब तक मतलब जो पॉसिबिलिटीज ट्राई करती रहती है ना, मतलब ये जो फीचर के जो कॉम्बिनेशन है वो तब तक वो फीचर्स के कॉम्बिनेशन ट्राई करते रहेंगी तब तक उसको जो सूटेबल सॉल्यूशन नहीं मिल जाता, मतलब वो एक सेटिस्फैक्ट्री सॉल्यूशन के ऊपर नहीं पहुंचती, जो आउटपुट उसे रिक्वायर्ड है वो उसे नहीं मिल जाता, तब तक वो कंटिन्यूअसली फीचर्स के कॉम्बिनेशन है वो करते रहेगा, ट्राई करते रहेगा। सो द ब्रूट फोर्स अप्रोच इज ऑल अबाउट द selection of the combination of features, right? So here the second important point related to the exhaustive feature selection is it means this method tries and make each possible combination of features and return the best performing feature set, right? So वही हमने अभी डिस्कस किया कि ये जो ब्रूट फोर्स अप्रोच है इसके थ्रू ये हर एक पॉसिबल कॉम्बिनेशन को ट्राई करेगा और ऐसे पॉसिबल कॉम्बिनेशन वो आइडेंटिफाई करेगा कि जिससे जो आपका मॉडल हो वो आपको बेस्ट परफॉर्मेंस दे सके, ठीक है। सो हियर विद द एग्जांपल हम ये देखने की समझने की कोशिश करेंगे कि हम ये एग्जैक्टली ये जो एग्जॉस्टिव फीचर सिलेक्शन है वर्क कैसे करता है। मान लो हियर वी हैव अ data set and this data set is having a total 5 features, that is x1 x2 x3 x4 and x5. So here if you have to use this brute force approach, so by using this technique, first as a input सबसे पहले मान लो input 1 जो रहेगा उसमें ये जो सारे फीचर्स है ये आप मॉडल को प्रोवाइड करोगे। सो x1 x2 x3 x4 and x5. So after providing this 5 feature to the model as an input, what we have to do here we have to just check the performance of this model, right? Now after that the second input, as a second input हम मॉडल को प्रोवाइड करेंगे इसका कॉम्बिनेशन। मान लो जैसे x1 x2 ये कॉम्बिनेशन प्रोवाइड करेंगे, x1
x3 ये एक कॉम्बिनेशन प्रोवाइड करेंगे, x1 x4 ये एक कॉम्बिनेशन प्रोवाइड करेंगे, और x1 और x5 इस तरीके से कॉम्बिनेशन प्रोवाइड करेंगे, और मान लो x2 x3 और x2 ये एक कॉम्बिनेशन प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, सो ये ब्रूट फोर्स अप्रोच जो है, जो एल्गोरिदम है, वो उसमें क्या होता है ना कि एग्जैक्टली ये जो नंबर ऑफ फीचर्स हम एज ए इनपुट जो कॉम्बिनेशन हम प्रोवाइड कर रहे हैं ना, तो उसमें से जो बेस्ट परफॉर्मिंग जो फीचर्स है उसको वो आइडेंटिफाई करता है। मान लो ये आपने एज ए इनपुट प्रोवाइड किए पांचों, उसमें से आपको ये x3 बेस्ट परफॉर्मिंग फीचर मिल रहा है। ठीक है, तो वो इसको आपको आइडेंटिफाई करके देगा। उसके बाद नेक्स्ट सेकंड इनपुट के टाइम आपने अगर कॉम्बिनेशन ऑफ दिस फीचर्स प्रोवाइड किया, मान लो आपने x1 x2 कॉम्बिनेशन दिया, x1 x3 कॉम्बिनेशन दिया, x1 x4 कॉम्बिनेशन दिया, और ये कॉम्बिनेशन दिया, तो इसमें से आपको वो बेस्ट परफॉर्मिंग कॉम्बिनेशन आपको वो बताएगा। सो फॉर एग्जांपल इन दिस सेकंड इनपुट सेट, दिस इज द बेस्ट परफॉर्मिंग कॉम्बिनेशन, राइट। सो इस तरीके से जब तक आप नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन यू कैन ट्राई, राइट। सो ऐसे जो कॉम्बिनेशंस है वो नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन ट्राई करते रहेगा, और उसमें से बेस्ट परफॉर्मिंग जो फीचर्स है, जो कॉम्बिनेशंस है, वो हमें आइडेंटिफाई करके देगा, ताकि आपका जो फाइनल आउटपुट हो, फाइनल जो आपको मॉडल चाहिए, आउटपुट चाहिए, वो आपको अच्छी तरीके से, मतलब जो रिक्वायर्ड चाहिए वो आपको मिल सके, मतलब आपको परफॉर्मेंस अच्छा मिल सके। ठीक है, सो इस तरीके से आप इसको समझ सकते हो कि ये जो एग्जॉस्टिव फीचर सिलेक्शन है वर्क कैसे करता है। ऑल वी कैन से द ऑल पॉसिबिलिटीज टिल सेटिस्फैक्टरी सॉल्यूशन इज नॉट फाउंड। तो ये जब तक सेटिस्फैक्टरी सॉल्यूशन इसे नहीं मिलेगा रिलेटेड टू द आउटपुट, तब तक ये सारी पॉसिबिलिटीज ट्राई करते रहेगा, सारे कॉम्बिनेशंस ट्राई करते रहेगा। मान लो एज अ सेकेंड इनपुट ये ट्राई करेगा x1 x2 और x3, ये तीनों फीचर्स का कॉम्बिनेशन ट्राई करेगा। उसके बाद नेक्स्ट ट्राई करेगा, मान लो सेकेंड इनपुट में ही x1 x2 और x4। ठीक है, उसके बाद x1 x2 और x5, राइट। उसके बाद x2 x4 x5। इस तरीके से नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन ये बना के नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन ट्राई करेगा, और उसमें से बेस्ट परफॉर्मिंग जो कॉम्बिनेशन होगा उसको वो सिलेक्ट करते जाएगा। ऐसा कब तक होगा? ऐसा जब तक होगा तब तक उसे सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट रिलेटेड टू द आउटपुट नहीं मिल जाता, या फिर उसे वो उसके जो रिक्वायर्ड सॉल्यूशन पे है वो तब तक पहुंच नहीं जाता, तब तक ये ट्राई करते रहेगा। ठीक है, सो ये तीनों एक्चुअली जो टॉपिक्स है वो बहुत इजी है समझने के लिए, अंडरस्टैंडिंग के लिए। So these are the topic, we can say that these are the important term related to the feature selection. By using this technique we can also select the important features for machine learning model, or for building the model, we can say. So yes, this is about the greedy forward, greedy backward and exhaustive feature selection technique. So yes, अगर आपको वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा तो प्लीज़ एज ऑलवेज वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और स्टूडेंट के साथ शेयर कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।